Hallelujah. हालेलुया। We praise you, Lord. परमेश्वर का स्तुति करते हैं। Hallelujah. How wonderful our God is. हमारा परमेश्वर कितने महान है। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम यीशु मसीह के नाम से हर एक का स्वागत करते And हैं a very warm welcome from the Heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया की ओर से हम हर एक का स्वागत करते हैं। As a family, we bless you all in the name of our Lord and Savior एक Jesus Christ. परिवार होकर हम आपको यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। Please share with your family and friends. मैं विनती करता हूँ कि आप लोग सब ये वीडियो को जो आप देख रहे हैं कृपया अपने मित्रों के साथ अपने परिवार के साथ ये शेयर कीजिए So that they will be blessed as well. ताकि वो लोग भी आशीष पाए। So can you please turn to our Bibles from the book of Psalms. हम अब वचन को खोलेंगे भजन संहिता की किताब So the book of Psalms chapter 91 beginning from verse 14 to 16. 91 अध्याय में 14 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। So chapter 91, 14 to 16. Beginning from 14. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दुर्गायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord has given us an assurance from this word और परमेश्वर ने हमें एक वादा दिया है इस वचन में that when we call upon Him, He will satisfy us with all these words which He has और जब given. हम उनको पुकारेंगे परमेश्वर हमें तृप्त करेगा उनके सब आशीष के साथ। Be it when you are in trouble, संकट के समय में भी or be it when it comes to our life, और हमारे जीवन की परिस्थितियों में भी and finally even the salvation which the Lord has going to give. और उद्धार के लिए भी। Hallelujah. हालेलुया। Come on, church. Let us rise up. Let us look up to the Lord in prayer. आइए हम सब खड़े रह जाएंगे और उत्साह के साथ परमेश्वर की ओर प्रार्थना में देखेंगे। We should thank God for helping us to witness this wonderful moment which He has given us. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया है इस समय के लिए। And we thank God for helping us to enable us to give this wonderful moment where we could praise and worship Him in truth and in spirit. परमेश्वर का धन्यवाद भी हम करते हैं कि उन्होंने एक मौका दिया ताकि हम आत्मा और सच्चाई से उनकी स्तुति आराधना करें। Hallelujah. We thank you, Jesus, for this time you have given us. परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने दिया। We thank you for this day which you have blessed us. आज के दिन आपने हमें आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। Lord, the word which you have given us today, Lord, let your name be glorified in through our lives. जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। We receive your word. Let your word digest in our lives. आपके वचन हमारे जीवन में हम प्राप्त करें प्रभु। Lord, we pray that this service will be a blessing to many. प्रभु मांगते हैं कि ये जो सभा है बहुतों के लिए एक आशीष बने। All those who are thirsty, Lord, you fill them with your spirit. जो कोई आज प्यासे हैं प्रभु आपकी आत्मा से उनकी प्यास को बुझाइए। Lord, as your word says, Lord, the one who seeks you will receive it in the name of प्रभु Jesus. जैसा कि वचन में लिखा है जो आपको ढूंढते हैं केवल वो पाते हैं। Even though when you seek Him and you have not found Him, keep seeking Him until you find अगर Him. आपने अभी तक नहीं पाया है तो भी और भी परमेश्वर को ढूंढते रहिए। We pray for all those who are thirsty for your word, Lord. प्रभु जो कोई आपके वचन के लिए प्यासे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for the upright that they will receive your blessings. प्रभु हम मांगते हैं उस धार्मिक लोगों के लिए ताकि वो आपकी आशीष को प्राप्त करें। We pray for all those who are joining us live right now, Lord. You help them to receive your blessings in the name जो of कोई ये Jesus. लाइव स्ट्रीम को देखेंगे प्रभु जो यहाँ मौजूद है हर एक को आपके हाथ में देते हैं ताकि वो आपकी आशीष को प्राप्त करे। And we pray for all those who are yet to join in, Lord. Help them to join in and let them receive your word in the name of जो Jesus. कोई इसमें शामिल होने वाले हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं हर दरार को निखारें ताकि वो भी आशीष को प्राप्त करें। Lord, help us to prepare so that we will worship you in truth and in spirit. प्रभु अपने आप को तैयार करने के लिए मौका दीजिए ताकि हम
आपको आत्मा सच्चाई से ढूंढे and help us to be prepared to listen to your word. और प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। As your word says, those who have ears, let them hear. जैसा कि वचन में लिखा है, जिसके पास कान हो केवल वो सुने। And let us be one among them और that हम we उन लोगों have को ears. सेव करें प्रभु जिसके पास कान है। Hallelujah. We thank you, Jesus, for your grace and your mercy upon धन्यवाद us. यीशु आपके अनुग्रह दया के लिए। We keep each and every one into your precious hands. हर एक को आपके हाथों में देते हैं। Let each and everyone be blessed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हर एक जन आशीष हो जाए। We commit our lives, we submit our lives, and we surrender our lives into your precious हम hands. अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु आपके हाथों में देते हैं। Once again, we thank you and we give you all the glory and honor. एक और बार धन्यवाद कहते हैं और सारी आदर महिमा आपको In देते the हैं। name of Jesus, we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Can we say a loud amen? My God, हालेलुया। जो ताली बजा के हालेलुया कहेंगे हम। हर पल हम मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये परमेश्वर की कृपा है। आमीन। एक हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। हमारे लिए हम केवल कहेंगे कि 7 दिन की बात है, 6 दिन की बात है, लेकिन वो 6 दिन में बहुत कुछ हो सकता है एक इंसान के जीवन में। लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो हर घंटे, हर पल, हर मिनट परमेश्वर हमारे साथ रहा और इसलिए आज भी हम उनकी आराधना करने के लिए बहुत ही खुशी के साथ उनके भवन में हैं। Hallelujah. So do you believe it? He's worthy to be praised. Yes, I will give you praise because you deserve it. I will give you praise for what you've done. I'll give you praise for you are able, and then I'll overcome. Hallelujah. 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 So Hallelujah. let's all clap our hands and thank the Lord for all that He's done for us. Let's all give a clap offering to our Lord and Master. I give you praise because you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout out the fingers of my hand. God is here in our praises. Shout out the fingers of my hand. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout out the fingers of my hand. God is here.
Hallelujah. Let's give a clap offering to our Lord. हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं, as we praise him in everything, heaven joins us. हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हमारे संग संग परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि वो आराधना स्तुति की योग्य है। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। Praise the Lord Jesus. Heavens open as we sing your praise. Heavens open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Heavens open. Heavens open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. We shout, come on. Shout up the kingdoms among us. God is here in our praises. Shout up the kingdoms among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout up the kingdoms among us. God is here in our praises. Shout up the kingdoms among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Holy
मुझको नई जिंदगी यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी अधूरी यीशुआ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी अधूरी ला 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 I give you praise, but you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise, for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the good sound rise. Shout out the King is among us. God is here in our praises. Shout out the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout out the King is among us. God is here in our praises. Shout out the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Amen. Hallelujah. चलो ताली बजाकर हम यीशु का धन्यवाद करेंगे. Hallelujah. आज भी परमेश्वर यीशु स्तुति के योग्य है. आमेन. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर. पर आज भी वो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है और गौरव के योग्य है. हालेलुया. आज भी the shout of the king is among us. जिस मसीहा की आराधना कर रहे हैं वो क्रूस पर उन्होंने जय पाया है. बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हमारा क्रूस बहुत भारी है. We feel that the cross that we are carrying is very heavy, but we forget that the king is among us. हम भूल जाते हैं कि ये राजा हमारे बीच में है. उन्होंने भी अपना क्रूस उठाया था. The Lord Jesus, He carried His cross. Amen. And He says, you carry your cross and follow me. And today He's won the victory on the cross. He's won the victory on the cross and He's given us that same victory. कि जो भी आपका भी बोझ है, क्रूस है, आप जो उठा रहे हैं, वो आप उस पर विजय पा सकते हैं. हालेलुया. पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब योशुआ के दिन, जब मूसा परमेश्वर ने मूसा को ले लिया था, उसके बाद योशुआ इस्राएल के लोगों को चला रहा था. और जैसे वो लोग यरीको के वहां आते हैं, when they come, they cross the river Jordan river को क्रॉस करके वो यरीको के शहर के पास आते हैं. तो बाइबल में लिखा है कि वो लोग जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे यहोशुआ ने उनको चलाया था. Joshua led the people of Israel as God had commanded. And तभी हम देखते हैं कि 6 दिन के लिए एक बार इस्राएल के लोग, जो याजक है, परमेश्वर के जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, उसको उठाकर वो लोग हर दिन एक बार पूरे सिटी में चक्कर मार रहे थे. और 7वें दिन वो लोग 7 बार वो सिटी, वो जो शहर है, उसके राउंड वो लोग 7 बार चक्कर मार रहे थे. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो मिरेकल्स है, हम
हम परमेश्वर को पूछते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए कीजिए, पर उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक रीजन रहता है, एक कार्य हमें करना पड़ता है और एक टाइम का एक गैप भी रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो यरीको का जो दीवार है उसको गिराने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। It does not take God much time to make the walls of Jericho fall. The walls of Jericho fall. It isn't, for God it's nothing. Like, उनके लिए तो ये कुछ impossible चीज है ही नहीं। पर फिर भी बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु इस्राएल के लोगों को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं। He takes 7 days for them to do something there. Hallelujah. और हर दिन जैसे वो चल रहे थे, वो लोग मे भी फर्स्ट दिन चल रहे थे तो सोच रहे कि हम चल रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि वो लोग चिल्ला कर परमेश्वर की वो लोग स्तुति कर रहे थे। They were praising the Lord Jesus and saying that God is good, His love endures forever. वो जैसे स्तुति कर रहे थे, एक बार चक्कर मारा घर आ जाते थे। नेक्स्ट डे they go, वो लोग चक्कर मारे वापस घर आते हैं। In the natural realm, हमारे जो शारीरिक जीवन है उसमें तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था। हालेलुया। पर परमेश्वर कुछ कर रहे थे। God was working. Amen. As each day they were walking around the city, God was shaking the foundation of that city. वो walls, वो जो दीवार की फाउंडेशन का है, जो नींव है, उसको परमेश्वर हर दिन हिला रहे थे। जब हम हर दिन एक मकसद के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनकी स्तुति आराधना करते हैं, when each day we walk in the presence of the Lord, we praise His holy name, we seek the Lord, we do not know what is happening, but the Lord is shaking the foundations of the enemy. Hallelujah. परमेश्वर हमारे विरोधियों का जो नींव है उसको हिला रहे हैं। हर दिन परमेश्वर हिला रहे हैं। Every day something is happening. Come on, say it. Something is happening. कुछ ना कुछ हो रहा है। इज़राइल के लोगों के मन में भी ये 6 दिन चल रहे थे तो we don't know what was going on in their minds. पर हर दिन जब वो चल रहे थे, वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, परमेश्वर की जो आर्क ऑफ द कवनेंट है उसको भी लेकर वो लोग खुशी के साथ प्रभु की उपस्थिति में चल रहे थे। और 7वां दिन 7 बार वो लोग जैसे चिल्ला उठे, जैसे वो लोग परमेश्वर की स्तुति किए। बाइबल में लिखा है यरीको का जो दीवार है सब गिर पड़ा। Hallelujah. On the 7th day, when they went round the city 7 times, the walls of the city fell down. आज भी, ये 7 दिन, छोटी सी बात नहीं है। एक दिन में ही परमेश्वर जाओ, ऐसे करो और सब कुछ हो सकता था, पर परमेश्वर ने 7 दिन लिया उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो अपना जो विश्वास है पूरी तरह से परमेश्वर पर रखे। God wanted them to trust Him totally. He made them take 7 days. आपके लाइफ में भी अगर कुछ भी ऐसे डिले हो रहा है, परमेश्वर एक चीज जानते हैं और चाहते हैं कि आप हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें, हर दिन उनकी महिमा करें, हर दिन उनकी उपस्थिति में चलें। That you walk in the presence of the Lord day and night. वो लोग भी परमेश्वर की आर्क ऑफ द कवनेंट वेदी को उठाकर वो लोग हर दिन चल रहे थे, which means the presence of the Lord is very important. Though you can't see what is happening in the physical, though you can't see what's happening in the natural, आपके आंखों में आपको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, but every day, each day, walk in the presence of the Lord. हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलेंगे, परमेश्वर की जय गाएंगे। We shout that the King is among us. उस दिन उनके पास राजा तो नहीं था, पर परमेश्वर उनका राजा था। Hallelujah. Even today we have the King among us. परमेश्वर राजा हमारे साथ है। वो हमारे विरोधियों का जो नींव है, फाउंडेशन को हर दिन हिला रहे हैं। और 7वां दिन सही समय में, सही नियोग समय में आपके जीवन में परमेश्वर सारे दीवार जो आपको ब्लॉक करके रखे हैं, आपके विरुद्ध में खड़े हैं, उस सब दीवार को परमेश्वर तोड़ेंगे और उनके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। हम विश्वास के साथ जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते, महिमा करते हैं, हम अपने आप को नम्र करेंगे और यीशु की महिमा हम खोजेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। We can't see what's happening in the natural,
but we know that you're doing something, Father. और एक दिन हम कैसे भी देखेंगे कि आप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया।
जीवन द्वारा आपकी नाम की महिमा हो यीशु। We thank you, Father. Thank you, Jesus. We thank you for this beautiful time that you gave us, Lord. Thank you, Jesus. Thousands of thanks are not enough for all the good things that you've done for us, Lord. It's by your grace and mercy that we are alive today. It's by your grace and mercy that we seek you each day, Lord. And as we sang, Lord Father, with all of our heart, with all of our mind, help us to worship you and seek your face. पूरे दिल से, पूरे मन से आपकी आराधना करने के लिए हर पल हमें मदद कीजिए पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं। आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो देखने वाले हर एक उनके हाथ में देते हैं, एक महाजनक कार्य उनके जीवन में कीजिए यीशु के नाम से। हर एक प्रार्थना का उत्तर उनको जल्द से मिले यीशु के नाम से। ये 2021 में एक नया चंगाई, एक नया तृप्त, एक नया आशीष हर एक के घरों में जो विश्वास के साथ आपको ढूंढते हैं, हमें रखते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, जो कोई एक तमन्ना के साथ, इच्छा के साथ, जरूरतों के साथ आपको ढूंढ रहे हैं, आज हर एक जरूरतों को आपके हाथों में देते हैं। जो कोई आपको आत्मा और सच्चाई से ढूंढता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता प्रभु। और आज भी हमारी कलीसिया के हर एक जन को, इस लाइव स्ट्रीम को देखने वाले हर एक जन को हम आपके हाथों में देते हैं। Take total control, Lord Father. जैसे वचन को भी सुनेंगे, हम मांगते हैं वचन अनुसार जीने के लिए हमें मदद कीजिए। सुनने के लिए कान, समझने के लिए हृदय हमें दीजिए प्रभु। पासवान को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। सारी स्तुति महिमा केवल आपको देते हैं, आप योग्य हैं। यीशु मसीह की पवित्र, अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आई छोटा ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। और आप सबका स्वागत हम यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव स्ट्रीम में करना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इस आराधना में। और जैसे हम वचन भी सुनते हैं, अपने आप को हम तैयार करेंगे। हालेलुया। और जैसे हम परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हर एक वचन प्रभु का वो पूरा होता है। Every word that God has spoken over your life will come to pass in the name of Jesus. आमेन। आज भी आप उत्साह के साथ, जैसे नए साल में हम जैसे परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे आगे जाता है। We believe that God goes before us. He makes all our crooked paths straight. हमारे आगे जाकर हमारे सारे टेढ़े मेढ़े रास्ता को वो सीधा करता है। प्रोटेक्शन, जो एक सुरक्षा है, वो परमेश्वर हमें दे सकता है। He is the one who protects us from all evil. आमेन। जैसे हमने आज सुबह भी जैसे आराधना चालू करते वक्त हमें वचन सुना था, Because he set his love upon me, I will rescue him. क्योंकि हम उन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आके हमें बचाता है। आमेन। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। आप जुड़े रहे। जैसे पासवान हमारे बीच में वचन बांटेंगे, आप ध्यान से सुने। अपना बाइबल उठाकर, आपको नोट्स लेना तो नोट्स लेकर, एक उत्साह के मन के साथ, एक खुला हृदय के साथ, कान खोलकर, आंखों खोलकर, मन खोलकर हम सुनेंगे और कहेंगे, यीशु आप मुझसे बात कीजिए। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। पासवान अभी बीच में आकर वचन बांटेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of Jesus Christ. मेरे प्रियो, आज हम सब प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए जो प्रभु ने हम सबको मौका दिया, और इसके लिए प्रभु को और एक बार धन्यवाद देंगे। And as the Lord has given us the opportunity to praise and worship Him, we'll thank Him once more. क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, And He's a very gracious वो God. आपके ऊपर प्रेम करने वाला And He परमेश्वर loves है, each and every one और of us. आपको ऊपर नजर रखने वाला परमेश्वर And है। He's watching over us. हालेलुया। Hallelujah. और ये जो परमेश्वर जो आपको बुलाता है, And today He's calling out to you क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। because He loves you. आप प्रेम करने से पहले वो हमें प्रेम करता है। And even before we loved Him, He loved us first. हम कभी कभी ऐसा भी कोई सोचता है,
तो हम ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, ज्यादा मसीह में है, इसके लिए परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है। Many a times we misunderstand thinking that because I am very much spiritual, because I seek the Lord, so He loves me. जो वचन में जो लिखा है, पिता परमेश्वर ने जो पहले जो हम सृष्टि होने से पहले हमें बुलाता है, And the word says that even before we were formed, the Father has already called us. और उनको जानते हैं ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा करके वो जानते हैं। And He is aware that this is my son and this is my daughter. बाकी अपनी ताकत से, अपने सामर्थ से हम प्रभु से नहीं आ सकते हैं। And it's not by our own strength or because of our own boldness that we can come into the presence of परमेश्वर God. की दया से हम परमेश्वर ने हमें बुला दिया, आपको भी बुला दिया। And it's because of His grace that He's called us, you and me. हालेलुया। Hallelujah. अभी हम वचन में पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियो 1 का अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। 2 तिमोथियो चैप्टर 1 वर्स 9 हम पढ़ेंगे। Knowing this, that the law is not who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उनके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। Hallelujah. पिता अभी यीशु मसीह बता रहा है, पिता का बता रहा है, पिता ये आपने जो मुझे जो दिया है, मैं इनके लिए मैं आया हुआ है करके। And here the Father, Jesus tells His Father that you have sent me for these people, I have come for them. क्योंकि जो परमेश्वर जो किसको ऊपर जो पुकारता है वो पर यीशु मसीह का है। And all those that Father has called, they belong to Jesus. आज हमें ये समझना है, अपनी ताकत से नहीं तो अपनी प्रार्थना से नहीं तो अपने कामों से प्रभु हमें प्रेम नहीं करते हैं। And we must understand that it's not by our prayers, our strength or our own, anything that is of our own that God has loved जो us. वचन में जो लिखा है, ये परमेश्वर की जो शुरुआत से अपने पर प्रेम करता है, अपने नाम से पुकारता है। And here it says that even before itself, He's given us a holy calling and He's called us by name. तो इसके बारे में जो परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है, यूहन्ना का 17 अध्याय में पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 17 वर्स 6। यूहन्ना 17:6 पढ़ेंगे। I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours. You gave them to me and they have kept your word. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, पिता परमेश्वर जो किसको जो चुन लिया है, किसको पुकारता है, वो हमें दे दिया करके। And here it says that the Father has chosen and those people He has chosen, He has given them to Jesus. तो आप ये समझना है, आपको परमेश्वर पुकारा है कि नहीं। And you have to consider now, has the Lord called you? अगर आपको नहीं पुकारा तो क्या करना पड़ेगा? And if He's not called you, what are you going to do? तो परमेश्वर आपको छोड़ देंगे? You think that God has forsaken you? परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर कहते हैं, आपको भी परमेश्वर बुलाता है। But the Lord is saying that He calls out to you also. उसमें जो वचन में जो लिखा है, जो परमेश्वर का जो वचन को वो सुनने वाला है, उसका आज्ञा पालन करने वाला And है। here it says that you gave them to me, they kept your word. हम परमेश्वर का वो लोग को क्या करना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। And as the word says that they are supposed to listen to the word and they have to keep God's word. तब आप किसका होंगे? And then who do you belong to? यीशु का होंगे। And you then belong to अगर God. परमेश्वर का नाम आपको पर आ गया तो आप यीशु मसीह का होंगे। When you have the name of Jesus over your life, you belong to Him. क्योंकि जो हमारा, वापस बता रहा हूँ, अपने सामर्थ से कोई बोलेंगे हम प्रार्थना करने वाले, बहुत प्रार्थना करने वाला है, बहुत काम करना करके, उसके कारण नहीं, उनके दया से, उनका अनुग्रह से, उनके प्रेम से हमें बुलाता है। And you cannot boast saying that because I am spiritual, I am very, I pray a lot, that because of that God has chosen me. No, it's because of His grace and mercy that He has chosen you. Verse 7. Now they have known that all things which you have given me are from you. अब
अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। सब कुछ परमेश्वर जो बता रहा है वो उनके लिए जो दिया है। And everything God has given, it belongs to Him. कंटिन्यू करेंगे verse 8। For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहले जो अपने जीवन में सब कुछ हर चीजों से हमें विजय पाने के लिए हमें विश्वास चाहिए। And first of all, in order to overcome this world, we need faith. आज की जो संदेश यही है, परमेश्वर ने आपको बुलाता है, And today's message is that God is calling out to you, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। and He wants to work a wonder in your life. जो परमेश्वर के अपने जीवन में कार्य करने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना पड़ेगा। And in order for Him to continue working in your life, you have to surrender yourself to Him. तब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर आ जाएंगे। And then the Word of God starts working in your life. परमेश्वर के वचन हमारे अंदर आने के बाद हमारा विश्वास बढ़ेंगे। And when the Word, this seed takes root, then you start, it starts working in your life. आप पूछिए हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? And your faith increases, and you might wonder that how does my faith increase? कभी-कभी किसी को ज्यादा विश्वास होता है, कभी-कभी किसी को कम विश्वास होता है। Sometimes people have more faith, sometimes people have lesser faith. लेकिन जो कारण जो इस तरह जो है अपने जीवन में कभी-कभी अपने आत्मा से हम बढ़ता नहीं है, कभी-कभी हम एकदम इजीली ले लेता है। Many a times we are not growing in the spirit, we are not growing spiritually, and we take the spiritual matters very lightly. जो इसमें वचन में जो कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जो दिया है, वो इंसान परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। And here it clearly says that those who God has called, they will listen to the word of God and they will keep the word. वो क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर दिया करके यही विश्वास है, यही संदेश है। And they say that they have believed, that is what, that Jesus came from the Lord Father and they believe in Him. आमीन। अभी जो परमेश्वर जो कहते हैं, मतलब जो हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एक ही लौटा पुत्र को जगत में दिया करके हमें ये सबसे पहले विश्वास करना होगा। And we have to believe that the Father sent His only Son for us into this world. और आगे वचन में I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ ले, अगर आप जो परमेश्वर से जो चाहिए आप जो विनती नहीं किया तो भी परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करने वाला है। And here we see that even though you do not see God, the Lord Himself is praying for you. यीशु मसीह जो कहते हैं, जो पिता तुमने जो किसके जो दिया है, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। And He says here that I am praying for those who you have given me. तो मैं ये संसार के लिए आया नहीं है कि वो बता रहा है। And He's clearly saying that I am not praying for the world, I लेकिन जो am praying for them. आया है पूरे संसार के लिए आया है, लेकिन वो बता रहा है मैं जो तुमने जो दिया उनके लिए मैं प्रार्थना करेंगे करके बता रहा And है। here we see that Jesus did come into this world for the whole world, but here He specifically mentions that I am praying not for the world now, but I am praying for these people who you have given me. मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में नहीं है तो ये सुनने वाले, ये देखने वाले मेरे भाई मेरा बहन ध्यान से सुनिएगा। And my beloved who are unbelievers, if you are watching us this day, listen attentively. अगर वो आप मसीह में नहीं है तो परमेश्वर यीशु मसीह जो कहता है वो आपकी प्रार्थना नहीं करेंगे कि इसका मतलब नहीं है आपको वो नकरा करता है, आपको अलग करता है। Don't think or assume that God is not praying for you or He left you out of this verse. आपको उनका पास आना पड़ेगा। Come to the Lord अगर Jesus. आप उनको पास आए तो वो अपना ले लेंगे। And when you come to Him, He will accept you. अगर आप उनका बेटा नहीं है, आपका बेटी नहीं है तो भी आप ये काम कर लीजिए। आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम कर लीजिए और परमेश्वर बस आइए, परमेश्वर आपको बेटा बेटी बनाएंगे, अपनी संतान बनाएंगे। And if at all you are unaware of God, you do not know Him as your Father, you come to Him, accept Him, and He will make you His son and daughter. तब यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And then Jesus, of course, this जो verse आपको जो applies चाहिए वो to you. करवाएंगे। He'll do all that you want Him to do. ये इसे क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? सबसे पहले परमेश्वर क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37, मत्ती 10वां अध्याय
37 वचन। He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ये क्या बता रहा है? देखिए बहुत जन क्या करते हैं, मेरा माता पिता वही परमेश्वर व्यक्ति के बहुत जन अभी भी बोलते हैं। And even today, a lot of people say that my mother and my father are my God. मदर अपने माता पिता अपना उनसे प्रेम करना जरूरी है, उनसे आज्ञा पालन करना जरूरी है, उनके ख्याल रखना बहुत जरूरी है। It's necessary you love your parents, you take care of them. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो कहते हैं सबसे पहले तुम अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करते हो। And here God is saying that you are supposed to love God even more than your father and your mother. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अब समझ ले, वो बहुत जन अपने बेटे के ऊपर अपने बेटी के ऊपर अपने सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। There are many others also who love their children, their sons, daughters a lot. उनके लिए जीवन देते जान देता है। They are ready to give out their life for them. लेकिन ये परमेश्वर जो कहते हैं, जो 37 में जो लिखा है, अपने माता पिता को ऊपर भी प्रेम, मतलब यीशु मसीह से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा अगर प्रेम ना करने की बता रहा है। And here the verse says first that do not love your even father and mother even more than God. और ऐसा बता रहा है मेरे से ज्यादा तुम्हारा बेटा बेटी से प्रेम ना करना। And he's also saying that you cannot love your children even more than me. अगर उनके ऊपर ज्यादा ये परमेश्वर को छोड़ के दुनिया अपने संसार के ऊपर प्रेम करने से परमेश्वर के योग्य नहीं है करके बता रहा है। And he says you are not worthy of me if you love this world, the people of this world more than me. क्यों कारण है? And why is he mentioning such a परमेश्वर thing? ऐसा तो नहीं है, कुछ बोलते तो कुछ कारण तो होगा। And he's not just saying anything just for that. There Verse must be some 36. reason behind Verse it. 36. For I have come, and a man's enemies will be those of his own household. परमेश्वर ने कहते हैं अपने घर का अंदर वही अपने दुश्मन है, मतलब जो मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मतलब जो बाहर से नहीं आते, सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है। Many a times enmity begins from your home. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले परमेश्वर आप प्रेम करने समय में, और जो ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने से आपका जो घर वाला भी आपसे प्रेम करेंगे। Many a times when you start loving God first more, then your love in the family also increases. और दूसरा क्या करना पड़ेगा? भजन संगीता 105 Psalm 105 वचन 1। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. जो क्या बता रहा है? सबसे पहले परमेश्वर को स्तुति करना है। And it says first give thanks to God. और आपको जीवन में परमेश्वर क्या क्या काम किया है उसके बारे में दूसरे की बताना And है। He says that make known His deeds among the people. ये उनके नाम को महिमा सबसे पहले आपको करना होगा। And in order for the glory of God to be revealed, you must share the deeds that God has done for हमने पहले you. क्या बताया था? परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना करता है, आपका जो जीवन में काम करता है, आपके जीवन में संघर्ष मिलता है, हमें उसके लिए महिमा देना पड़ेगा। And when we know that Jesus has prayed for us, He's already doing miracles and working wonders, you have to give Him the glory. Verse 2. Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous works. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। परमेश्वर अपने जीवन में क्या क्या संग्रह किया, क्या क्या चमत्कार किया करके जो आप सोचने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा परमेश्वर करने वाला है, और क्या किया करके उनको धन्यवाद देना है, उनको याद दिलाना And you है। must remember all the good things and the wondrous works that God has done for you, and you must give Him the praise. वो बता रहा है आपको उसके बारे में बात करना है, आपको घर पे, आपको बेटी से, बेटा से, माँ से, हर जन से आपको बात करना And है। you have to talk about the good deeds and wonderful deeds of the Lord among your family also. Verse 3. Glory in His holy name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord.
उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अपने हृदय आनंद कभी होता है हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचना है, परमेश्वर के सम्मुख में बैठने से अपने हृदय आनंद होता है। And when we continually seek the Lord, when our hearts seek Him, there is joy and rejoicing in our lives. अब आप जो भी काम करते हो, जो भी सब जगह में टेंशन प्रॉब्लम आने के समय में अब थक जाता है, अब पीछे मुड़ के जा रहा है। Many a times we get tired because of our work, our problems and the situations we face, and many a times we turn back from our faith. उसे क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। My beloved, at that such times when you are tired, be seated in the presence of God. Verse 4. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। एक वचन में लिखा है हर दिन आपके जीवन में अगर समस्या आते रहते हैं, जो भी आने दो जाने दो, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के परमेश्वर को ऊपर स्तुति करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर के लिए हमें उसका वचन का अनुसार हमें मनन करना है। And even though you're going through tough situations, you have to be seated in the presence of God. You have to start praising and worshiping God. इसमें लिखा है हर दिन का बात हमें करना पड़ेगा। And it says that every day, each day you are supposed to do this. तब आपके जीवन में जरूर बदलेंगे। And surely there will be a change in your life. आपकी समस्या दूर होंगे। Your situations will change. तो इसे हमें कभी-कभी क्या करता है, कोई सुन के हमें विश्वास नहीं होता है, देखने के बाद ही हम विश्वास करते Many हैं। a times we do not believe when we hear God's word, but we say that when I see it, I might believe अब it. देख लो किस तरह से यीशु मसीह के टाइम में किस तरह दो जन कैसे चंगा हो गया, हम पढ़ेंगे। We're going to see that during the time of Jesus, that how two men were healed. Matthew chapter 9 verse 27. When Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आप ये समझ लो, जो अंधे हैं ये कभी देखा नहीं यीशु मसीह क्या चंगाई किया, क्या चमत्कार किया करके वो देखा नहीं है। And we see that these two blind men are blind, and so therefore they have not seen Jesus doing the miracles practically. वो सुना होंगे ऐसे यीशु मसीह करके जो जगत में आया है, वो चंगाई कर रहा है, आशीष कर रहा है, दयालु परमेश्वर करके सुना होंगे। Maybe they have heard that there is Jesus who's come from heaven, he's doing miracles, signs and wonders. वो सुन के क्या किया, उधर बैठा नहीं है और उनके प्रभु को ढूंढ के उसके पीछे आया है। And after hearing the reports, they did not just sit down, but they came following तो Jesus. उधर किस तरह से परमेश्वर चंगाई किया करके देख लो, दोनों अंधे व्यक्ति यीशु मसीह ने देखा नहीं है, लेकिन उनका बारे में सुना। And we see that these two blind men, they have not seen Jesus, but surely they have heard about him. आज आप परमेश्वर को देख रहा नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर को सुन रहे हैं, उनके वचन को सुन रहे हैं। And today, of course, you're not seeing Jesus, but you are hearing his word. अगर आप सुन गया तो आप विश्वास करेंगे तो क्या होता है, कंटिन्यू And when करेंगे। you hear and you believe, what happens we see? उसके पीछे पड़ गया था परमेश्वर। 28. जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? वो सबसे पहले वो दोनों क्या मांग रहा था, ये दाऊद का पुत्र हमें दया कर करके पढ़ के चिल्ला रहा था। And we see that they were crying out to Jesus, saying that Son of David, have mercy on us. यीशु मसीह ने तुरंत उनको चंगाई नहीं किया है। And we see that Jesus did not respond to anything, any of their cry at that यीशु time. मसीह उनको तुरंत बुलाया नहीं है। He did not call forth for them to अब come ये to him. समझना चाहिए, वो देखिए दोनों व्यक्ति विश्वास के साथ उधर आया है, लेकिन वो पुकारता है, हे प्रभु, हे दाऊद का पुत्र, हमें दया करके पुकारता है, लेकिन यीशु ने इमीडिएटली उनको उत्तर नहीं दिया। And we see that when Jesus was there, these men, they called out saying, Son of David, have mercy on us. But Jesus did not respond to them anything immediately. वचन 28 में जो लिखा है, यीशु मसीह घर पे आने के बाद फिर भी वापस बोलने को आया है। And here we see that when Jesus came into the house, after that they came to him again. जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। ये देख लो, ये परमेश्वर का ये जो चमत्कार कैसा होता है,
जो दोनों अंधे फिर वापस यीशु मसीह के पास घर पे आने के टाइम में प्रभु ये पूछ रहा है, ये तुम्हें मैं चंगाई कर सकता है अगर तुम विश्वास करते हो तो पूछ रहा है। And yet Jesus is questioning them, saying, "Do you believe that I am able to do this?" अगर वो अंधे लोग बीच में पूछा पुकारा, ये प्रभु दया कर करके यीशु ने उसको उत्तर न दिया, के पीछे मुड़ के नहीं गया है। And we see that these blind men, when they called out to Jesus and he did not answer them or respond anything, they could have turned back and gone back. अगर आपका जीवन में आपने प्रभु से कुछ विनती किया होंगे, प्रार्थना किया होंगे, आपको नहीं मिले तो आपके पीछे मुड़ के नहीं जाना है। And when you have called out to the Lord, you have asked him, requested him something and you did not receive it, don't turn back and go. अब आगे प्रभु से और जाना है। You have to go behind him आपके even जीवन more. में तकलीफ होंगे, समस्या होंगे, प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम को छोड़ के प्रभु के पास और आना है। Even though you're going through a tough situation, some problems that you're facing, you have to still continue following Jesus. उनको क्या पूछा, तुमको मैं चंगाई तुमको चमत्कार कर सकता है, तुमको छुटकारा दे सकते हैं, तुम विश्वास करते हैं करके पहले He's पूछा है। questioning them that, do you believe that I am able to do this? Do you believe that I can do the miracle here? वो बोला हाँ प्रभु हम विश्वास करते And they हैं। say that, yes Lord. तो जब क्या हो गया प्रभु ने क्या And then किया? we see, then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास के किस तरफ तुम्हारा विश्वास है उस तरफ होएंगे करके। He's saying, according to your faith, let it be to you. मेरे प्रिय आज आपका विश्वास को बढ़ा लीजिए। My beloved, increase your faith. वो परमेश्वर आपको भी बुलाता है। Today God is calling you वो also. प्रेम करने वाला He's a परमेश्वर है। very loving God. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम करना है First of all, love the Lord your God, और सबसे पहले उनको आज्ञापालन करना obey है His word, और उनको ऊपर विश्वास करना है। and continue to believe अगर in ये Him. तीनों चीज आपके पास रहने थे, आपके जीवन में चंगाई होगा, जरूरी होगा। Surely when you believe these three, there will be a miracle in your life. आपके जीवन में जो भी कितना भी तकलीफ आने दो, लेकिन वो तकलीफ के बाद में भी, तकलीफ के साथ में भी परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देंगे। Even though you go through a tough time, in spite of it all, in the midst of your problems, there will be a deliverance for you. आप ये सोचेंगे परमेश्वर देखता नहीं है, And you might, परमेश्वर को पता नहीं है मेरी तकलीफ क्या है करके। and you might think that God is not watching me, God does not know what I'm going through. अगर आप परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं हो तो परमेश्वर आपको देखेंगे नहीं। And if you are not the son and daughter of God, if you're not walking in His ways, how can He watch over you? अब करना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आपको आना पड़ेगा। Come to the Lord Jesus. अगर आप उनके पास आए तो वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं है, And when you come to Him, He will never leave you. क्योंकि वो परमेश्वर जो कहते हैं, आज का जो संदेश यही है, परमेश्वर तुमको आशीष देने वाला परमेश्वर है और तुम्हें बुलाता है। And so He's a God who blesses and He's calling out to you. वो आपका नाम जीवन के किताब में लिखना चाहिए तो हमें आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। And in order for Him to write down your name in the book of life, come do some work. क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर ने हम जन्म होने से पहले अपने नाम से पुकारता है And before we were formed in our mother's womb, God has called us by name. और जो अगर परमेश्वर उनके नाम से हम सबके नाम से पुकारने वाले परमेश्वर है और हमें जीवन दे दिया परमेश्वर है। And He's a God who calls us by name. He's given His life for us. हमें ये क्या करना पड़ेगा, दूसरा तिमोथेयु चैप्टर 1 वर्स 6 पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथेयु चैप्टर 1 वर्स 6। Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर की उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इसमें जो बताया है, पौलुस ने अपने हाथों को तिमोथी के ऊपर जो रखा है उनको पवित्र आत्मा से उसने अग्नि से भर दिया है। And we see that Paul had laid his hands on Timothy and Timothy was filled with the Holy Spirit and he received the gifts. ये वचन ये जो लिखा है वो जब मसीह में आता है एकदम जोर से आता है, प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु के लिए सब कुछ करने की तैयार होता है। And many people, they come into Christ, they listen to the word, they get excited and they are so excited that they're ready to do anything for God. अपने जीवन में समस्या आने के बाद पीछे मुड़ के जाना है। But when they get into some kind of a trouble or situation, they turn back. आज परमेश्वर तुमको जो बुलाता है, तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उनको ऊंचा करना पाए, उठाना पड़ेगा, उनको आपको अग्नि जलाना पड़ेगा। And here today Paul is reminding you that you have to stir the Spirit, stir the gifts inside of you that the Holy Spirit has given you. अभी समझ ले, आग लग रहा है,
And imagine that the fire is burning. उसको अब और लगाना पड़ेगा, उसको बुझना नहीं चाहिए। And the fire must not turn off, but you are supposed to add to that fire. जो आपका अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है, And if at all you have the gifts of the Spirit और in जो you, पवित्र आत्मा अपना अंदर होने के बाद वो पवित्र आत्मा को हमें उसको उत्साहित करना पड़ेगा, उनके साथ उनको क्या पसंद है वो करना पड़ेगा, तब आपका आत्मा उनका आत्मा से बन जाएगा। and when you are filled with the Holy Spirit, you have the Holy Spirit of God inside of you, you have to stir the gifts of the Spirit and you have to cooperate and you have to work with the Spirit so He works through you. अभी समझ लीजिए, आपके जीवन में कठिन समय आए तो उसमें से भी प्रभु छुटकारा दे सकता है। Even if you are going through a tough time or a situation, God can deliver you. जो वचन में जो लिखा है, आत्मा से, जो पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। And Bible says, for the Spirit of the Lord, all things are possible. इसीलिए वचन में जो लिखा है, कोई जो जगह में पवित्र आत्मा है वो जगह में छुटकारा है। And that's why the Word of God says that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. हालेलुया। Hallelujah. और जो पवित्र आत्मा के बारे में काफी दिन पहले आपको बताया था, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अंदर आने के समय में हमको मन शांत हो जाएंगे, अपने मन के अंदर बल हो जाएंगे। And when the Spirit of the Lord comes, we have meditated many a times that when He comes, you receive power. वो किस तरह से आत्मा करके सातों वचन में पढ़ेंगे। For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। Hallelujah. जो परमेश्वर हमें जो आत्मा जो दिया है, वो भय का आत्मा नहीं है, डरने वाला आत्मा नहीं है। And God has not given us a spirit of fear, पर वो सामर्थ, सामर्थ, power, प्रेम प्रेम और संयम। संयम मतलब बुद्धि, मतलब आपको क्या करना है, क्या ना करना करके परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सामर्थ देता है, अपने अंदर से आपसे बात करेंगे। and He's given us a spirit of power, of love, and of sound mind, so that the mind is clear enough to know what is to be done. The understanding power is given. कभी होगा And when do you receive such things? वो पवित्र आत्मा कार्य करना चाहिए तो आपको उनका अंदर के अंदर जो आत्मा को आपको जलाना पड़ेगा, आप जलाना पड़ेगा। In order for the Spirit of the Lord to work inside of you, you have to stir yourself up. You have to stir your spirit. वचन में जो लिखा है, मेरे प्रियो, हमें जो पवित्र आत्मा मिलने के बाद उसको कभी खोजना नहीं चाहिए, उसको संभालना है। And when you have received the anointing, you should not lose the anointing, but you have to safeguard it. आमीन, Amen. आमीन। आमीन। जो पवित्र आत्मा आपका अंदर है तो उसको संभालना है। And you have to safeguard your anointing. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा आपको जीवन में साथ रहना है तो आपको पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। And if you want the Holy Spirit God to continually live inside of you, you have to live a holy life. इसके लिए वो परमेश्वर जो कहता है, हम पवित्र है, तुम भी इसके लिए तुम पवित्र बनो। And Jesus says that I am holy, so you also be holy. वो वचन 9 में वही लिखा है, हम ऑलरेडी पढ़ा है, वो हमें बुलाया है, वो पवित्र जीवन बिताने के लिए वो पवित्र परमेश्वर आपको बुला रहा है। And verse 9 says that He has saved us and called us with a holy calling, so that we continually live in His purpose. हमें उसके लिए हमें उद्धार दिया है, हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए। And He has given us salvation so that we continue in the holy calling, living a holy life. जो क्या लिखा है, तुम जगत का ज्योति बनाएंगे, He's called you the light of संसार के लिए नमक का सजा देंगे। light of this world, salt of the earth. तो कभी तुम अगर पवित्र जीवन बिताने समय में तुम्हें दूसरों को देखेंगे, ये दुनिया के लिए तुम चमकेंगे, दूसरे के लिए ज्योति बन के जिएंगे। And when you live like the salt and the light, people will look at you and you will shine in front of अभी them. समझ ले, खाने में किस तरह जो नमक डालने, थोड़े से नमक है, लेकिन खाने के पूरा कितनी स्वाद बन जाता है। इस तरह से अगर ये पवित्र जीवन यीशु से तुम जीने के समय में दूसरे के जीवन में नमक बन जाएंगे। And when you live a holy life, you live like the salt and the light. When we put just a pinch of salt, it changes the whole taste. And in similar manner, when you are a salt to this world, you change lives of people. Verse 10. But it has now been revealed to the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। किसके द्वारा? सुसमाचार मतलब गुड न्यूज, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रभु संभालता है। And we see that immortality
to light through the gospel. God has made us the light through this gospel. हालेलुया। Hallelujah. तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? आज जो परमेश्वर जो कहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर को पहले स्थान देना है Give the Lord the first place. और सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है। Love the Lord your God first. परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। Believe the word of God. परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है Obey the word of God. और हमें परमेश्वर के समूह में स्तुति आराधना करते रहना And है। we have to continually praise and worship God. आपके जीवन में जो भी समस्या होंगे परमेश्वर संगाई करेंगे। And we see that whatever you go through, God will bring about a इस तरफ deliverance. से जो अंधे लोग उनका पास जो गया है उस तरफ पे प्रभु के पास आप आइए। Like the blind men came to Jesus, you also come to the Lord today. आज परमेश्वर तुम सबको बुला रहा है, भले तुम मसीह हो, तुम विश्वासी हो, आप विश्वासी हो और प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर तुमको पुकारता है, हे मेरे बेटा करके तुमको बुलाता है, हे मेरे बेटी करके तुमको बुलाता है, तुम परमेश्वर के पास आ जाओ। And today, if you might be a believer or an unbeliever, God is calling out to you and saying, my son, my daughter, you come to me. तुम्हारे जीवन में किस तरह जो अंधे थे, किस तरह तुम्हारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम थे, सब निकाल के तुम्हारे जीवन में रोशनी बनाएंगे। Even if you live life like as if a blind person, but God will remove that blindness of yours and He will make you whole. क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर Because He है। is a loving God. हम सब के लिए, दुनिया के लिए क्रूस उठा के, लहू पा के, अपने जीवन दे के हमें उधार देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह करके हमें विश्वास में रहना है। And always believe that Jesus is the one who died for us. He took the cross, He saved us. और दूसरा चीज, लास्ट चीज क्या बता रहा हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष किया होंगे, आपके जीवन में उदार दिया होंगे, तो आप दूसरे को उसका बारे में सुनाना है। And if God has saved you, He's done wonders in your life, you have to reveal it to people. जो मत्ती में हम जो पढ़ा था, जो दोनों अंधे को बता रहा, तुम ये बारे में किसी को नहीं बताना करके यीशु ने उनको कहता था। And we see that in that chapter, Jesus tells the blind men, don't go and tell anyone anything about वो this. शब्द वो क्या किया था, मतलब पूरा संसार में उनको बोला था, ये मैं यीशु मसीह ने हमें चंगाई किया करके, यीशु मसीह उद्धार करता करके, वो दुनिया को बताने शुरू किया है। And we see that though Jesus told them not to tell anybody, they went around the whole country and they proclaimed it. तो कभी-कभी कोई बात का ऐसा उल्टा बोलना पड़ता है। Many a times we have to tell people the opposite for them to do the right thing. अगर परमेश्वर उनको बता रहा था, सपोज समझ लीजिए, जो अंधे को जाओ तुम चंगा होगे तो सबको बताओ करके, And if at all Jesus had told the men, the blind men, that go tell everybody that you were healed, आप समझते सब जगह वो बताएंगे? and you think that they would have gone all over and told everyone? ये इंसान सब उल्टा सोचने वाला इंसान है, इसके परमेश्वर जानते And हैं। God knows that we humans we do always the opposite. अरे ये ना करो बोल तो वही करने वाला है। We tell them don't do and they do that only. इसके कारण परमेश्वर जो उनको कहता था, अरे तुम किसी को ना बताओ के, उसके कारण ये अधिक जन से बात करना था। And when Jesus told them that don't let anybody know about this, they went and spread the whole news around the whole country. आज ये संदेश ये है मेरे प्रिय, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या क्या किया करके देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना है और दूसरे को सुसमाचार सुनाना है। And when God has done something in your life, my beloved, even today God tells you that you must go and tell the world the good news that you have received. प्रार्थना करेंगे। Let's pray. ये परमेश्वर आपको सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता है। My Lord, we thank you for this wonderful time you've given आज us. हमारे लिए जीवन दिया परमेश्वर है। You are the Lord who gave your life for us. फिर आज देखने वाले भाई बहन बच्चे सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Today, all those children, family, brothers, sisters who are watching us, we thank you for them. कितने दिन से बड़े प्रार्थना करके आपने उत्तर नहीं दिया, तो आज इनके लिए विनती करता हूँ प्रभु, इनके लिए दया कर लीजिए, कृपा करके इनको उत्तर दीजिए प्रभु। If at all they have prayed for something that they have not received today, I pray on their behalf that you will grant it to them and you will answer their prayer. आप हम सबको पर प्रेम करने वाला है। Because you are a God who loves each and every one हम of us. जन्म होने से पहले आपने हमें पुकारा प्रभु। And even before we were formed in our mother's womb, you हमारे called us. नाम से पुकारने वाला परमेश्वर हाँ मैं प्रभु। You are the God who called us by name. हमारे ऊपर खैर करने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। You are the Lord who is concerned about हमारे us. ऊपर इतना प्रेम दिया वो कभी हम भूल नहीं सकते प्रभु। Lord, the love that you have shown for us, we can never forget. आज के दिन जो आपको वचन सुन के जो विश्वास के जो करता है, लेकिन ये सबके लिए प्रभु जीवन में आशीष होने दो प्रभु। Lord, all those who are hearing your word today, we pray this word will be a blessing to everyone. सबके जीवन में नया आशीष आने दो। Let a new blessing walk into their life. सबके जीवन में जो कठिन समय निकल जाने दो प्रभु। Let all the troubled times of theirs pass कोई today. भी चीजों के कोई भी कमी कठिन ना आने दो प्रभु। Lord, we pray that there will be no lack in their lives. आप आने वाला है जल्दी,
and you are coming soon. और उसके लिए हम सबसे निंदा करने के लिए एक दूसरे से तैयार करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। We pray that you will help us to prepare ourselves and prepare one जो another. आपने जो दिया पवित्र आत्मा को संभालने के लिए सबको मदद कर लीजिए We प्रभु। pray that you will help everyone to safeguard the anointing and safeguard the Holy Spirit सिर्फ inside आपका of नाम them. महिमा के लिए Just for your name's प्रभु glory. यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से हम मांगते हैं। We thank the Lord in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रियो, आज परमेश्वर वापस आपको बुला रहा है, आपके जीवन में नया कार्य करने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर के पास आ जाओ My beloved Jesus is calling out to you today. You come to Him और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। and believe in His word. जो आज मैं आपको वादा करता हूँ, जो किस तरह के जो अंधे के जीवन में काम कर दिया है परमेश्वर ने, आज तुम्हारे जीवन में नया कार्य करने वाला है। And I assure you that just as God performed a miracle in these two blind men's eyes, God can do a miracle in your life. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. Hallelujah. God bless you. आइए आखिरी प्रार्थना मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमीन। आशीष लेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया है, हम याद करते प्रभु। आज के दिन आपने जो नया कार्य सबके जीवन में कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। आमीन। Amen. Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष करे। God bless God you. bless you all. Thank you so much for joining along with us in this live stream service. We believe God is working in your life. Continue to be linked with us online and in person also. We believe that even this year, something new God is going to do in your life. धन्यवाद कि आप हमारे साथ ये लाइव सर्विस में जुड़े रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।